Dear students, in previous class we studied about interference and conditions of interference. We studied that when two waves having same wavelength means when two monochromatic waves having same frequency means when two waves having same frequency and same wavelength move along the same direction and having zero or constant phase difference, zero or constant phase difference superimpose on each other, then after superposition over the screen we get alternate bright and dark fringes. This very phenomenon of we get alternate bright and dark patches of light. This very phenomenon of getting alternate bright and dark fringes over the screen is known as interference of light. The points over the screen where we get bright fringes means there are some positions over the screen where intensity becomes maximum, means amplitude becomes maximum, means brightness becomes maximum. At those positions where brightness becomes maximum is known as constructive interference. Whereas there are some positions over the screen where intensity becomes minimum, amplitude becomes minimum, brightness becomes minimum, means there is darkness, and this very superposition is known as destructive interference. Constructive means in positive way, interference in positive way, and destructive interference means interference in negative way, जहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगा, जहाँ ब्राइटनेस कम हो जाएगा, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव मीन्स पॉजिटिव वे मीन्स जहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ जाएगा. Right? We also studied about the condition of constructive interference. In case of constructive interference, we studied phase difference. Phase difference should be either 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi in this manner. It means that it should be integral multiple of 2 pi. It should be integral multiple of 2 pi. When we will put n equal to 0, then we will get 0. When we will put n equal to 1, 2 pi n equal to 2, 4 pi n equal to 3, 6 pi, like this. We also studied condition in term of path difference. Path difference should be, P should be equal to either it should be either 0 or lambda or 2 lambda or 3 lambda in this manner, means it should be integral multiple of lambda, means you can say it should be integral multiple of lambda n lambda, where n should be equal to 0, 1, 2, 3, 4, like this. When n will be 0, then path difference will be 0. When n will be 1, lambda n will be 2, 2 lambda n will be 3, 3 lambda, like this. Right? And for destructive interference, condition was in term of phase difference, it should be multiple of pi, 3 pi, 5 pi. It means that it should be odd multiple of pi. It should be odd multiple of pi. Right? It means that it should be odd multiple of pi. Then you can write 2n minus 1 pi.
when you will put n equal to 1, then when you will put n equal to 1, then it will be equal to 2 minus 1, 1, 1 pi. When you will put n equal to 2, 2 to the 4 minus 1, 3 pi. N equal to 3, 3 to the 6 minus 1, 5 pi. Like this. And condition in term of path difference should be odd multiple of lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2. It means that it should be in the form of 2n minus 1 lambda by 2 when n will be equal to 0. When n will be equal to 0, when n will be equal to 1, then 2 and 2 minus 1, 1 lambda by 2 this. When n will be equal to 2, then 2 to the 4 minus 1, 3 lambda by 2 in this manner. Right. Now we will study. Now we are going to study if interference fringes over the screen will form. If interference means yes, interference patches will be formed over the screen. Then what will be their positions? उनका पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ स्क्रीन में कहाँ बनेंगे, कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. अगर ब्राइटनेस बनेगा तो कहाँ ब्राइटनेस बनेगा, कहाँ डार्कनेस बनेगा. एंड व्हाट विल बी देयर साइजेज. डार्क फ्रिंज का साइज कितना होगा, ब्राइट फ्रिंज का साइज कितना होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी these things. Topic is interference fringes and fringe width. See this very figure. Here you have a source of light. Now see here, waves are emerging from here, wave fronts are emerging from here. We are getting alternate bright and dark fringes. Black shaded represents crust and dotted line represent trough. देखिए crust and trough आगे बढ़ता जा रहा है. Right. And one more. Now here we have two slits and positions of these two slits. Here these two slits are at a distance a small d from each other. यह जो d है, दोनों स्लिट S1 और S2 है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है. And midpoint of S1 and S2 is lying in front of S. Right. And now from these two slits at a distance capital D, we have put a screen. Then now what will happen here? जब यहाँ पर जब यह वेव जो है S से चलता हुआ, क्रस्ट एंड ट्रफ S से चलता हुआ जब S1 और S2 के पास पहुँचेगा, देन नाउ वी विल गेट these two waves which will reach at S1 and S2. They will behave like new source of wave front. They will behave like, according to Hagen principle, they will behave like new source of wave front. और यह न्यू सोर्स ऑफ वेव फ्रंट बनेंगे. अब फिर यहाँ से वेव चलेगा. अब इन दोनों वेव फ्रंट की जो है या वेव्स की क्या करेक्टरिस्टिक होगा, तो देयर विल बी जीरो अप टू दिस वेरी लेवल S1 एंड S2. देयर विल बी जीरो पाथ डिफरेंस, देयर विल बी जीरो फेज डिफरेंस, क्योंकि जो यहाँ जितना दूर यहाँ तक चले होंगे यह भी पाथ उतना है, तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा. और पाथ डिफरेंस जीरो होगा, phase difference will be also 0. And now from here S1 and S2 waves will proceed in forward direction. Right. आगे बढ़ेगा. and it is your screen पर जो है अलग अलग पॉइंट पर जो है ये लोग मिलेंगे. कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मीन्स ब्राइटनेस होगा, मीन्स एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, मीन्स इंटेंसिटी विल इंक्रीज. और कहीं होगा कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा. देयर विल बी डार्कनेस, मीन्स देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. राइट. सही. तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. राइट. वी विल फाइंड पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन विच इज O. यह स्क्रीन का जो पॉइंट O है,
ये स्क्रीन का जो पॉइंट वो है, यहीं से हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, राइट। लेट अस सपोज देन एज वी, हमने यह कहा कि डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज D, राइट, एंड दिस वेरी लाइन is middle most point of the screen O, so this very distance will be D by 2 and this very distance will be also D by 2. This distance is D, means capital D, means the screen is placed at a distance capital D from slits S1 and S2. And now let us suppose we are thinking कि over the screen P is a point at which we are getting interference fringe. We are getting interference fringe which is at a distance x from O, right. हमने स्क्रीन पर एक पॉइंट P लिया जो है, और जो है स्क्रीन पर एक पॉइंट P लिए हैं और यह इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इंटरफेरेंस हो रहा है, मे बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मे बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी आर नॉट नोइंग, बट वी आर थिंकिंग कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर जो वेव पहुँचेगा, दोनों जो वेव पहुँचेगा और ये अगर इन दोनों वेव्स का जो पाथ डिफरेंस होगा, इफ पाथ डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ लेमडा, then there will be constructive interference. But when path difference will be integral multiple, odd integral multiple of lambda by 2, then there will be destructive interference, right. So first our work is to find path difference हम लोग पता करें, राइट. एंड वन मोर थिंग, आपने यह कहा कि ओवर द स्क्रीन वी विल गेट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज. देन सी हेयर वी हैव ड्रॉन अ डायग्राम. ये आपका पोजीशन ओ है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है एट पोजीशन ओ देयर विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी, मीन्स देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इसके लिए जो है यहाँ पर दिखाया गया है ब्राइटनेस दिखाया गया है, इंटेंसिटी अधिक दिखाई गई है. एंड एट D1 एंड D1 इन दोनों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, डार्कनेस है, इसलिए D दिखाया गया, पहला डार्क. यह तो एकदम बीचों बीच में ब्राइटनेस है और यह दोनों पहला डार्क है. एंड नाउ सी हियर अगेन, here we have V1 and V2. Here we have V1 and V2. It means that फिर यहाँ पर हमको ब्राइटनेस मिलने जा रहा है, इंटेंसिटी विल बी मोर, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम. फिर यहाँ पर D2 अगेन वी आर गेटिंग डार्कनेस, सेकेंड डार्कनेस. फिर यहाँ पर B2 अगेन ब्राइटनेस. एंड व्हेन यू विल ड्रॉ ग्राफ, देन यू विल गेट ग्राफ ऑफ दिस टाइप, मीन्स brightness, darkness like this, right. Then now come over कि if interference fringe will form at P, then that will be constructive or destructive, that will depend on path difference. तो path difference कितना होगा, then we can say path difference P should be equal to S2P minus S1P. एक वेव यहाँ से चला है, एक वेव यहाँ से चला है, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, विल बी इक्वल टू S2P minus S1P. इफ दिस वेरी पाथ डिफरेंस विल बी मल्टीपल ऑफ लेमडा, there will be constructive interference. But if it is odd multiple of lambda by 2, then it will be equal to destructive interference, right. Now we will find path difference. Consider a point P on the screen which is at a distance x from the center point O, right. Then what will be path difference? Path difference will be S2P will be, path difference will be S2P minus S1P. Path difference will be
S2P minus S1P. Right? Path difference will be S2P minus S1P. Now question is this कि S2P minus S1P हम लोग फाइंड आउट कैसे करें? तो देखिए एक मेथोडोलॉजी लगाया गया है S2 स्क्वायर P S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हम लोग निकालेंगे और इसी से फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाले फॉर्मूले से A प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर देंगे. देन वी विल गेट S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P. राइट, यहीं से S2P माइनस S1P निकाल लेंगे. तो जरा सा देखिए तो हम लोग S2P का स्क्वायर और S1P का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? See here, S2P, your S2P is this. तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए तो हेयर वी आर गेटिंग अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल और इसको निकालेंगे क्या लिखेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस. अब ये कितना होगा? देन इट विल बी इक्वल टू डी. ये कितना होगा? देन सी फिगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राइट, फ्रॉम P to B, then see here, it is your x and it is your d by 2. So this very distance will be x plus d by 2. It means that a square of this will be equal to a square of this plus a square of this. Means S2P का square will be equal to d square plus x plus d by 2 का whole square. Right? In this similar manner, S1P फॉर फाइंडिंग S1P पता करने के लिए हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये और फिर पर ये देन अगेन वी विल गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज़ योर D and your this very distance, it is your x, it is your d by 2. So this very distance will be x minus d by 2. This very distance will be equal to x minus d by 2. So a square of this will be equal to a square of this प्लस स्क्वायर ऑफ दिस. मीन्स डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर. राइट, देन S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू S2B का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर माइनस S1A का होल स्क्वायर माइनस PA का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो योर दिस वेरी एक्सप्रेशन विल बिकम D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी. मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी. एंड फॉर दिस माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी. राइट, एंड व्हेन यू विल ब्रेक द ब्रैकेट तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी बाई 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस एक्स प्लस डी हो जाएगा. मीन्स एक्स डी प्लस एक्स डी विच विल बी इक्वल टू 2xd, which will be equal to 2xd. It means that S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर will be equal to 2xd, will be equal to 2xd. Right? See here, S2P and S2P square minus S1P square will be equal to S2P minus S1P into S2P plus S1P which is equal to 2xd. अब यहाँ से आप S2P minus S1P जिसका हमको ज़रूरत था which is your path difference P ये निकाल जाइए. then it will be equal to 2xd by S2P plus S1P. राइट, अब S2P और S1P
जरा सा देखेंगे, या जो हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेज स्क्रीन पर मिलता है, हमको जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेज स्क्रीन पर मिलता है, वह सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से बहुत ज़्यादा दूर में नहीं मिलता है, बहुत कम ही में मिलता है। मीन्स S2P और S1P जो होगा, दे विल बी वेरी वेरी नियर टू D, they will be very very near to D. It means that S2P will be near to D, S1P will be near to D, so S2P plus S1P will be equal to 2D, will be equal to 2D. Then 2D cancel, P will be equal to X into small d by capital D, which is your path difference. It means when interference will take place, path difference will be equal to xd by d, right? अब अगर यही पाथ डिफरेंस लेमडा का मल्टीपल हो जाएगा, देन देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर विल बी ब्राइट फ्रिंजेज, और यही पाथ डिफरेंस अगर जो है लेमडा बाई 2 का मल्टीपल हो जाएगा, देन देयर विल बी डार्कनेस, राइट? देन नाउ कम ओवर कि व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ डिफरेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज. फर्स्ट कम ओवर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज पर आइए. देन ब्राइट फ्रिंज मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? देन वी नो दैट कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज पाथ डिफरेंस शुड बी multiple of lambda, means P should be equal to n lambda. So x into d by d should be equal to n lambda. Then x will be equal to n, d ऊपर चला जाएगा और d स्मॉल d नीचे चला आएगा. So x will be equal to n d lambda by d, where n equal to 0, 1, 2, 3 like this, right? And now put what will happen when n will be 0. जब n मेरा 0 होगा, जब n 0 पुट करेंगे, then x will become 0. x will become 0. हमने n इक्वल टू 0 पुट किया है, इसलिए उसको x 0 कह दिए, राइट? इट मीन दैट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज we will get first bright fringe for n equal to 0, and position of its position from mean position is 0. It means that जहाँ पर पॉइंट P था वहीं पर जो बनेगा ब्राइट फ्रिंज, वह बीचों बीच में बनेगा, सेंट्रल पॉइंट पर बनेगा. दैट्स वाई दैट वेरी ब्राइट फ्रिंज इज नोन एज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट? एंड फॉर n इक्वल टू 1, अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, अब ब्राइट फ्रिंज मेरा पहला बन गया है, सेंटर पर बना है, तो अब भाई अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पाते हैं, तो इसका मतलब ब्राइट के बाद डार्क बनना चाहिए. इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट के बाद पहला डार्क मिलेगा हमको. लेकिन हमको जो हम लोग ब्राइट फ्रिंज का डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए अभी केवल ब्राइट का डिस्कस करेंगे. नाउ पुट n इक्वल टू 1. व्हेन यू विल पुट n इक्वल टू 1, देन x1 विल बी इक्वल टू d lambda by d. मीन्स at a distance x1 from O, we will get first bright fringe, right? Similarly, when we will put n equal to 2, x2 will be equal to 2d lambda d, which will be position of second bright fringes. It means in this manner, when we will put n equal to 1, 2, 3, 4, we will get different bright fringes. So for nth bright fringe, we can write xn will be equal to n d lambda by d. means मीन पोजीशन से स्क्रीन पर हमको जो ब्राइट फ्रिंजेज इस तरीके से मिलेंगे जो है. वंस अगेन कम ओवर फिगर, सी है. इट मीन दैट यहाँ से मीन पोजीशन से अलग अलग पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगे. अगर यहाँ डार्क मिला है तो फिर ब्राइट, फिर डार्क, लाइक दिस, राइट? नाउ कम ओवर कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज. डार्क फ्रिंजेज के लिए कंडीशन पर आइए. हमने पढ़ा है कि पाथ डिफरेंस जो हम लोगों को शुरू में आया है, P इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, P इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, एंड इफ दिस वेरी पाथ डिफरेंस will be odd multiple of lambda by 2, means when it will be equal to 12 minus 1 lambda by 2, then we will get dark fringes. It means that when x will be equal to
2l minus 1 d lambda by d, there will be dark fringes. And here we will put n equal to 1 2 3. हम लोग n equal to 1 2 3 क्यों लेंगे यहाँ पर डार्क फ्रिंजेज में? वाई नॉट 0? क्योंकि हमको सेंटर पर 0 डार्क मिल चुका है। तो अब जो हमको सेंटर पर ब्राइट मिल चुका है, जिसको हमने सेंटर ब्राइट नाम दिया, फिर n इक्वल टू 1 पुट किए तो फर्स्ट ब्राइट लिए, इस राइट। एंड हेयर when you will put n equal to 0, then you will get answer in negative form, which is not possible. So we will put n equal to 1, means n equal to 1 पुट करेंगे और हमको ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलेगा, पहला डार्क मिलेगा, राइट। देन व्हेन यू विल पुट n इक्वल टू 1, जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, व्हेन यू विल पुट n इक्वल टू 1, तो आपका हो जाएगा 2 minus 1, देन 2 minus 1, 2 into 1 2, 2 minus 1 1 d lambda by 2d. It means that it will be equal to d lambda by 2d, and this will be position of first dark fringe, right? When you will put n equal to 2, then 2 2 ja 4, 2 2 ja 4 minus 1 3, 3 d lambda by 2d, 3 d lambda by 2d, and in this manner for n equal to n, we will get 2n minus 1 d lambda by d, means for nth dark we will get 2n minus 1 d lambda by d, right? It means that by the help of this very formula हमने यह पता कर लिया कि सेंट्रल ब्राइट से मीन पोजीशन से स्क्रीन पर कहाँ पर डार्क बनेगा, कितने डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंजेज बनेंगे, कितने डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगे। इट मीन दैट इफ इट इज योर स्क्रीन, अगर ये आपका स्क्रीन है एंड इट इज योर मीन पोजीशन, तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, यहाँ पर मान लिया अगर जो है पहला डार्क बन रहा है D1, तो इधर भी D1 बनेगा पहला डार्क। फिर यहाँ पर अगर जो है B1 पहला ब्राइट मिल रहा है, तो इधर भी पहला ब्राइट मिलेगा, फिर दूसरा डार्क मिलेगा D2, फिर यहाँ भी मिले मुझे लगा D2, फिर B2, फिर इधर भी B2. In this manner over the screen we will get alternate bright and dark fringes, right? We will get alternate bright and dark fringes, and this very phenomena of getting alternate bright and dark fringes is known as interference of light, right? Now come over what will be sizes of different fringes. तो अभी आपने देखा कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज बन रहा है, दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, राइट। तो अगर सेंट्रल ब्राइट से लेट अस सपोज इट इज योर स्क्रीन एंड इट इज योर मीन पोजीशन एंड हेयर यू आर गेटिंग ब्राइट एंड हेयर यू आर गेटिंग ब्राइट, तो इन दोनों ब्राइट के बीच में है ना डार्कनेस है, तो यह जो डार्क मेरा बन रहा है उसका साइज क्या होगा? देन कैन बी राइट distance of this bright from mean position minus distance of this bright from mean position will be equal to size of dark fringe or not? और अगर ये डार्क मेरा बन रहा, अगर ये ब्राइट मेरा अगर डार्क बन रहा है, ये एक डार्क है, ये दूसरा डार्क है, तो इन दोनों के बीच में ब्राइट ही बन रहा है, देन कैन बी राइट साइज ऑफ द ब्राइट फ्रिंज विल बी इक्वल टू position of this dark fringe from central position, means this distance minus this distance, means position of this dark from this minus position of this dark from this, right? इसी फॉर्मूलों को हम लोग यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड साइजेज ऑफ डिफरेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज, राइट। देन कम ओवर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का विड्थ कैसे पाएंगे? तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में डार्क फ्रिंज बन रहा है, सो वी कैन राइट विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज, सो इट विल बी इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1। मान लीजिए एक ब्राइट फ्रिंज xn है और दूसरा ब्राइट फ्रिंज उसके पहले वाला ब्राइट फ्रिंज xn माइनस 1 है। इन दोनों का जो मिड पोजीशन से सेपरेशन होगा xn और xn माइनस 1, वही जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, दैट विल बी साइज ऑफ that will be width of dark fringe, so it will be equal to xn will be equal to n d lambda by d,
एन एक्स एन माइनस वन इक्वल टू, फॉर्मूले में यहाँ एन माइनस वन पुट कर दीजिए, देन इट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन डी लेमडा बाई डी। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट डी लेमडा बाई डी। इट मीन दैट size of a dark fringe is d lambda by d, and as it is independent of n, यह n से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब साइज ऑफ ईच एंड एवरी डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल टू डी लेमडा बाय डी, राइट। नाउ कम ओवर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, then we can say it will be equal to separation between two consecutive dark fringes। दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिफरेंस होगा उसका माइनस होगा, which will be equal to xn डैश माइनस xn माइनस वन डैश, राइट। तो xn का फॉर्मूला क्या था, इट विल बी इक्वल टू 2n माइनस वन डी लेमडा बाई टू डी माइनस टू, अब n की जगह n माइनस वन डाल दीजिए, 2n minus 1 into minus 1 d lambda by d, and when you will solve it then you will get d lambda by d. It means that again size of bright fringes will be d lambda by d, and again it is independent of d, so we can say size of each and every bright fringes will be d lambda by d. It means that size of each bright and dark fringes will be equal to d lambda by d, where d is distance of a screen from S1 and S2, lambda is wavelength of light used। दोनों सोर्स का सेम वेवलेंथ है क्योंकि एक ही सोर्स से हमने दो सोर्स बनाया था, एंड स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट्स S1 एंड S2। नाउ कम ओवर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो शुरू वाले पहले वाले फिगर में दिखाए थे वहीं पर फिगर यहाँ दिखाया गया है। वंस अगेन कम ओवर पीछे वाले फिगर पर फिर से आ जाइए। सी दिस वेरी फिगर, एट मीन पोजीशन वी आर गेटिंग ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद हमको दोनों साइड में डार्क मिलेगा, जैसे इधर इंटरफेरेंस होगा वैसे ही इधर भी इंटरफेरेंस होगा, डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, राइट। तो जहाँ पर ब्राइट होगा वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जहाँ डार्क होगा वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, मैक्सिमम मिनिमम। एंड इन दिस मैनर व्हेन यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स then you will get a graph of this type, right? You will get a graph of this type, right? It means that you can see 0 d1 b1 d2 b2 d1 b1 d2 b2, right? See here, same graph is we have here. At the position of O we are getting central bright, at the position of O we are getting central bright, right? And at d lambda by 2d, पहला जो डार्क मिला था सेंट्रल ब्राइट से d lambda by d पर मिला था, मीन्स यहाँ डार्क मिलेगा, इधर लेफ्ट साइड मिलेंगे तो माइनस d lambda by d। उसके बाद फिर ब्राइट हमको मिला था और उसका जो पोजीशन था, पहला ब्राइट का जो पोजीशन था दैट वाज वह कितना था याद कीजिए, देन दैट वाज, सी हियर, दैट वाज डी लेमडा बाई डी। वह जो था आपका डी लेमडा बाई डी था, दूसरा का 2d लेमडा बाई डी था, राइट। इट मीन दैट डी लेमडा बाई डी पर फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है, यह तो सेंट्रल ब्राइट था, डी लेमडा बाई डी पर फर्स्ट ब्राइट मिल रहा है डी लेमडा बाई डी, और डी लेमडा बाई 2d मीन्स डी लेमडा बाई डी का आधे पर जो है फर्स्ट डार्क मिल रहा है, तो इधर भी ब्राइट मिलेगा माइनस डी लेमडा बाई डी पर, राइट। और फिर उससे आगे
डी लेमडा बाई टू डी पर जो है फिर डार्क 3 डी लेमडा बाई 2 डी पर डार्क मिलेगा, इधर भी -3 डी लेमडा बाई 2 डी पर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, यहाँ पर मिला था डी लेमडा बाई डी पर, यहाँ पर मिलेगा 2 डी लेमडा बाई डी पर, फिर ब्राइट मिलेगा, इन दिस मैनर ब्राइट एंड डार्क मिलते चला जाएगा, राइट। तो यह है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और तो और यहाँ पर देखेंगे तो जो है ब्राइट के जगह पर वाइट फिगर दिखाया गया है और डार्क के जगह पर डार्क स्पॉट्स दिखाए हैं, डार्क शेडो, डार्क रेक्टेंगल दिखाया गया है, राइट, विच आर इंडिकेटिंग अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, राइट। वन मोर थिंग इज गिवन हियर कि व्हेन एम्पलीट्यूड्स ऑफ बोथ वेव्स विल बी सेम, so at the constructive interference there will be darkness and at that very point intensity will be maximum. Then question is this कि what will be intensity at that very point? Then we can say कि वहाँ पर जो है दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाएगा, ट्रफ से ट्रफ मिल जाएगा, देन एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू a प्लस a and we know that intensity is directly proportional to a square of amplitude. So I maximum intensity at the crust will be equal to k into a प्लस a का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4 a प्लस a 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k इंटू a स्क्वायर. यू कैन राइट इट विल बी इक्वल टू k इंटू 2a का होल स्क्वायर. इंटेंसिटी जो हो जाएगा डबल हो, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा और इंटेंसिटी जो हो जाएगा, जो एक पोजीशन पर अगर जो है इंटरफेरेंस नहीं होता तो एक वेव के चलते कितना होता, I इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर. मीन्स एट द पोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स, एम्पलीट्यूड विल बिकम 2 टाइम्स पर इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स, राइट. एंड एट द पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज के पास क्या होगा, नेट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू क्या होगा, उसमें क्रस्ट, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ से टैली करेगा, मैच करेगा. तो क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड एक जो है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर कराएगा, एक डिस्प्लेसमेंट उतना ही नीचे की ओर कराएगा. सो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी और नेट एम्पलीट्यूड विल बी a माइनस ए जीरो. सो आई मीन विल बी इक्वल टू k इंटू ए माइनस ए का होल स्क्वायर which will be equal to 0. It means that at the position of destructive interference, at the position of darkness, net amplitude will become 0, net intensity will become also 0. It means that when amplitudes of both waves will be same, अगर दोनों का सेम एम्पलीट्यूड हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पास कंप्लीट डार्कनेस बनेगा और कंस्ट्रक्टिव के पास कंप्लीट ब्राइटनेस बनेगा, राइट. लेकिन अगर एम्पलीट्यूड का डिफरेंसेस हो तो यह जो है डार्कनेस के पास कंप्लीट डार्कनेस नहीं होगा. नो डाउट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम बट नेट एम्पलीट्यूड विल नॉट बी 0, क्योंकि वहाँ पर होगा a1 माइनस a2, I इक्वल टू वहाँ पर हो जाएगा k इंटू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. इट मीन दैट नेट एम्पलीट्यूड विल नॉट, नेट इंटेंसिटी विल नॉट बी 0. नाउ कम ओवर कि क्या जो है यह इंटरफेरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है. तो जरा सा देखिए, तो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, इंटरफेरेंस फेनोमेना के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते तो क्या होता, लाइट जो है स्क्रीन के हर एक पॉइंट पर एक सोर्स रहता, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए हर एक सोर्स पर इसकी लाइट पहुंचती, दूसरा सोर्स रहता उसकी भी लाइट हर एक जगह पहुंच रही है. अगर दोनों सोर्स एट ए टाइम ऑन कर देते तो दोनों से लाइट दोनों जगह पर पहुंच रही है ना. तो अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इंटेंसिटी लेंगे, अगर इंटरफेरेंस का जिक्र नहीं करते हैं, देन आई विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड. आई के चलते जो इंटेंसिटी क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, और I2 का क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर. इट मीन दैट नेट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 विच विल बी इक्वल टू k इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. k इंटू a1 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख लो
I will be equal to I1 plus I2. I1 will be equal to K into A1 square and I2 equal to K into A2 square, which will be equal to K A1 square plus A2 square. ये कब होता है? जब इंटरफेरेंस मेरा नहीं होता। बट इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो एक जगह ब्राइटनेस हो जा रहा है और एक जगह डार्कनेस हो जा रहा है, राइट। तो जो जहाँ पर ब्राइटनेस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा? देन वी कैन से वहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू आई मैक्स इक्वल टू के इंटू दोनों का जो एम्पलीट्यूड का सम का स्क्वायर और नॉट सम का स्क्वायर। और जहाँ इंटेंसिटी मेरा मिनिमम हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आई मीन इक्वल टू के इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अगर स्क्रीन पर यहाँ पर डार्क बन रहा है और यहाँ पर ब्राइट बन रहा है, मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट, यहाँ पर बहुत कम लाइट। अगर एम्पलीट्यूड सेम रहा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट, यहाँ पर एकदम खत्म, डीम डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, राइट। तो जरा सा देखिए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ वाला लाइट यहाँ शिफ्ट कर गया? इन दोनों का एवरेज निकाल करके देखिए। एंड व्हेन यू विल फाइंड एवरेज, आई एवरेज, व्हेन यू विल फाइंड आई एवरेज, देन आई एवरेज विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? वहाँ का इंटेंसिटी प्लस वहाँ का इंटेंसिटी बाई 2। देन व्हाट वी शुड राइट? आई एवरेज विल बी इक्वल टू आई मैक्स प्लस आई मीन बाई 2। आई मैक्स इक्वल टू के इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर और नॉट, एंड डिवाइडेड बाय 2। आप इसको जब ब्रेक करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2, इसको जब ब्रेक करेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 इंटू A2 प्लस A1 A2 माइनस A1 इंटू A2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा, इट विल बी इक्वल टू, आई एवरेज विल बी इक्वल टू के इंटू 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। देन इट विल बी इक्वल टू के इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, विच इज सेम एज जब मेरा इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था। इसका मतलब जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो एवरेज इंटेंसिटी ये है, जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था तब भी एवरेज इंटेंसिटी ये है। इसका मतलब लगता है कि जब इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क मिल रहा है, लगता है डार्क के पास से एनर्जी आकर के ब्राइट के पास शिफ्ट हो जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। एंड रियली मैटर इज दिस सेम, यही बात है कि जो है इंटरफेरेंस के समय जो हो रहा है, जो जहाँ पर डार्क बन रहा है वहाँ का एनर्जी जो है वह ब्राइट के आकर के पास शिफ्ट हो जा रहा है। दैट्स वाई एट द पोजिशन ऑफ ब्राइटनेस वी आर गेटिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, एंड एट द पोजिशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी आर गेटिंग darkness, right? It means that interference follows the laws of conservation of energy, right? Okay, my dear.